Hello everyone, welcome back to another episode of our podcast. I am your host Prachi Goyal and with me is my co-host and friend Vaibhav Kulkarni. Joining us today is a very special guest who is an amazing person you can know, Abhishek Mukherjee, the co-founder and CEO of Your First Job. With over 12 years of experience in EdTech world, Abhishek has always been passionate about education and helping young people reach their full potential. Now he's channeling that energy into Your First Job, a startup dedicated to helping fresh graduates and young professionals navigate the job market. With a background in teaching, teamwork, and expertise in Google Analytics, Abhishek has a unique blend of skills that drive the success of his venture. His journey from the classrooms of DAV Public School in New Delhi to co-founding a transformative platform is nothing short of inspiring. So let's dive into the world of career guidance, mentorship, and innovation with Abhishek Mukherjee. Abhishek, my friend, welcome to the podcast. Thank you so much. If I talk about my journey, so it has been, of course, 12 years, professional years, right? Starting from, I believe, 2010 or 11, sorry, till now. Okay. So now as I told, as I mentioned, I always mention to various, talks or the people whom I introduce. Uh, I was just a normal graduate. Okay, right? And the nat- so my I didn't thought ever kept in my mind first of all that I would be an entrepreneur. Okay, so it was like after graduate I went to a company, education industry. Of course, I was a normal sales executive. Then that's how I kept changing jobs, and then I had higher education market. I did school market. Okay, salary comes in every month. I was happy with it. Okay, so that's how we worked. So and but I think it happened after 2020. Met this guy who is now also my very good friend, a brother and a colleague. Okay, Mr. Chef Kumar Sharma. Okay, so I met him, as a channel network my who had in my business. Okay, so when I initially bonded with him through him only, I came to know about this world of startups, being an entrepreneur, right? I didn't know anything about it. Okay, so but he was the one who we used to discuss about companies, the network he has, and how he has built. Being at such a young age, like when he started, he was 24 years of age. Right now he's 29. So through him, so that he was the one who one day told me, Abhishek, let's build a startup. And I was like, I don't know what to do, but I don't have any experience. How will I do? Don't worry, we'll just start. Let's start. So that's how we created a brand, a product, initial level in teaching. Okay, which was name of Your First Startup. Okay, where we came out with a curriculum of entrepreneurship to school students. Okay, so that's where my entrepreneurial journey started. Okay, and it's been like 3 years or 4 years. Okay, so still being an entrepreneur, still learning new things every day, making mistakes, okay, creating blunders, then again going forward and trying to build up. So that's what we are trying to do. So So, considering that you mentioned that a big time of your life you have spent in a corporate life, right? Just like Rocket Singh, you mentioned you were doing sales and that stuff. So, आपको कैसा मतलब how was your journey so far? As you mentioned, it was you were happy about that. So, what was that point where you felt that कि यार अब बस बहुत हो गया, like let's do something? Because I think when I look at your time frame, I think उस time entrepreneurship, startups and ये इतना buzz और heavy नहीं था, glamorous नहीं था. उसके बाद अभी काफी glamorized हो गया है. So what was your motivation behind it? आपको कैसे लगा कि let me just get started with it? ओके, मोटिवेशन मोटिवेशन की बात करूं, मतलब ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था मेरे को किसी ने, मतलब कि मुझे स्टार्टअप ही करना है. इट वाज लाइक कि जब मैं धीरे धीरे जब लोगों से बात किया, ठीक है, जब मैं शिव से मिला और बहुत लोगों से मिला, एंड जब सबको देखा कितना अच्छा कर रहे हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट चीजों में अच्छा कर रहे हैं,
ठीक है। तो मैंने जस्ट जब मेरे पास ये आइडिया आया, जब मेरे एक शेफ ने मुझे बताया कि लेट्स स्टार्ट, ओके, तो मैंने सोचा, मैंने सबसे पहले मैंने मना करा, क्योंकि ये मैं एक फैमिली का भी बंदा हूँ, ठीक है, आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ किड, राइट, मुझे सबका ध्यान भी रखना है, हैव एन एक्सपेंस, राइट। अब मैं जॉब छोड़ के या जॉब के साथ करके इतना प्रेशर लेके स्टार्टअप में आऊंगा, क्या क्या होगा। देन मैंने अपने आप को एक दिया कि यार लेट्स टेक अ चांस। मैंने बस बोला कि यार अभिषेक, ठीक है, आपको 12 साल हो गए, यू आर नाउ RM रीजनल मैनेजर, आगे जाके पता नहीं 5 साल VP बन जाओगे, ठीक है, आपका एक लाइफ सेट हो जाएगा, या आप पैसा आता रहेगा हर महीने, यू विल बी हैप्पी, राइट। लेकिन क्यों ना यार, अगर वो चीज है आप में, क्यों ना एक किया जाए, हो सकता है यू विल क्रिएट समथिंग फॉर योरसेल्फ एंड फॉर दी सोसाइटी, और जनरल जो एक नाम कमाना होता है स्टार्टअप में होता है, एक नाम आता है कि यार क्यों ना मैं ट्राई करूं। तो ऐसे ही आया कि लेट्स ट्राई, चलो मैं करता हूं, ठीक है, देखता हूं क्या होता है। सो आई इनिशियली आई टोल्ड, चलो यार मैं अपने आप को 6 महीने देता हूं। 6 महीने हुआ, 6 महीने बाद आया, चल और 6 महीने दे दिए, 6 महीने बाद कहा कि चलो यार 1 साल और दे देता हूं, ठीक है। तो इस तरह से करते 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 फिर एक पॉइंट आया कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, चाहे स्ट्रगल्स बहुत है, प्रॉब्लम बहुत है, ठीक है, मतलब टेंशन बहुत है, एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स वी फेस एवरी डे। बट वही है कि जब एक होता है ना कि व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोडक्ट और योर ब्रांड, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, यू कैन से इट पार्ट ऑफ योर माइंड एंड पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। वो एक आपका बच्चा है, वो भी कि आपने उसको बनाया है, ऐसे कैसे छोड़ दो ठीक है। तो वही चीज था कि मेरे को मोटिवेट किया आगे चल के कि नहीं, मैं इसको करता हूँ। बड़ा स्टेप होता है जबकि आप जॉब छोड़ के अचानक से एंटरप्रेन्योरशिप लाइन पे आ रहे हो, राइट? तो किस तरह से आप मेंटेन कर रहे थे इस चीज को कि लाइक ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट वहां पे रिक्वायर्ड है एंड यू मैनेज कर रहे थे, एंड ऑल्सो आई नो कि 2020 में आपने कोई और स्टार्टअप स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर यू स्विच टू दिस स्टार्टअप लाइक योर फर्स्ट जॉब। तो ये जो जर्नी थी कितनी चैलेंजिंग थी आपके लिए? हाँ, इनिशियली चैलेंजिंग तो बहुत था। व्हेन आई टोल्ड माय फैमिली, जब मैंने अपनी वाइफ को बताया कि यार मैं एक स्टार्टअप के साथ हूँ और ऐसा ऐसा मेंबरशिप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियली कोई रिस्पॉन्स नहीं था, ठीक है, क्योंकि उनको ये था कि ठीक है, मे बी ही इज ट्राइंग टू डू, वो कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन बीच में एक फेज आया जहां पे चीजें थोड़ा सा मतलब हुआ था, चैलेंजेस फाइनेंशियली भी हो, मेंटली भी हो, इमोशनली भी हो, ब्रेक डाउन्स होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। तो उस टाइम पे थोड़ा खराब भी हो रहा था, और उस टाइम पे चैलेंजेस भी थे, घर वाले भी हो गए थे। एक पॉइंट टाइम में ऐसा भी था, आ गया था, मेरे अंदर ही आ गया था कि लेट्स फिनिश इट ऑफ अभिषेक, इट्स नॉट कप ऑफ टी, इट्स नॉट कप ऑफ टी, छोड़ दो, फैमिली देखो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है खुद का एक मेंटल जो स्ट्रेंथ है मेरा एज एन इंडिविजुअल, वो बहुत जरूरी है, जो मुझे रियलाइज हुआ। क्योंकि अपने आप को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, और कभी कभी आपको फैमिली के साथ भी लड़ना पड़ता है, ठीक है। मतलब आप ये सोचो कि हमेशा फैमिली सपोर्ट करेगा एज एंटरप्रेन्योर, वो भी मुश्किल है। फैमिली मोस्टली नहीं करती है, कुछ टाइम पर फैमिली भी गिव अप कर जाती है, ठीक है। आपको आई गेस हमारे पॉडकास्ट में पहले गेस्ट है जो एक्चुअल रियलिटी बोल रहे हैं इस चीज का क्योंकि मोस्ट ऑफ द गेस्ट ऑलवेज सेज कि हाँ फैमिली का फुल सपोर्ट एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल, लाइक फैमिली, और खासकर जिनका फैमिली, जिनके चलो माँ बाप एक बार को समझ लेते हैं, पिताजी बोलते हैं ठीक है मैं तेरे को 1 साल खिला दूंगा, लेकिन जहाँ पे आपके वाइफ और किड है वहां पे तो मुश्किल है। वहां पे इनिशियल लेवल पे ठीक है, लेकिन जब प्रॉब्लम आने लगता है कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको पड़ती है, आपको अपने घर से भी पड़ता है, आपको लॉ से भी पड़ता है। तो पूरा लोग बोलते हैं कि यार यू डूइंग रॉन्ग, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या होता है कि फिर आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, अपने दिमाग में रखना पड़ता है कि नहीं यार मैं करूंगा, लड़ना पड़ता है, यू हैव टू फाइट फॉर इट। Great. And then I went to your website, your first job. I saw some of the services and everything there. मुझे थोड़ा सा I feel कि like you're offering services for the students to get certified and then get an entry level job for them. So क्या आप थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करके हमको बता सकते हो कि क्या exactly your first job do? क्या सर्विसेज है, एंड देन हाउ स्टूडेंट कैन लाइक व्हाट इज द एनरोलमेंट प्रोसेस, पूरा एक थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ द जर्नी। हाँ,
देखो, योर फर्स्ट जॉब का कॉन्सेप्ट एक जोक से शुरू हुआ था। Oh, ठीक really? है, जोक क्या था, ये 2-3 साल पहले आया था लिंक्डइन में, यूट्यूब में बड़ा आता था। आई थिंक यू बोथ गाइस कैन रिलेट। एक लिंक्डइन में जोक चलता था एक कंपनी का कि वी वांट फ्रेशर्स विद 2 or 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। Hmm. Yeah. ठीक है, और इतना पैकेज हम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग उस कंपनी का ट्रोल करते थे, मजाक उड़ाते थे। Mhm. यार ये क्या है, पोस्ट है, फ्रेशर चाहिए, 5 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ आ रहा है। Yeah. ठीक है, बड़ा चलता था ये, याद है। तो एक्चुअली जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, देन हमें रियलाइज हुआ एक्चुअली कंपनी गलत नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि यार एक्सपीरियंस मतलब कंपनी में एक्सपीरियंस चाहिए, वो एक्चुअली कहना चाह रहे हैं स्किल्स। Hmm. ठीक है, जो एक बच्चा है जो वो काम कराना चाह रहा है, क्योंकि होता क्या है ना, पहले एक कॉन्सेप्ट था, जैसे नॉर्मल, मैं तो इंजीनियर नहीं हूं बट आप लोगों से रिलेट करते होंगे जिन्होंने करा है। टीसीएस में गए, इंफोसिस में गए या ऐसी कंपनियों में गए, पहले 3-4 महीने होती ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद फिर वो होता था। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है, अब कंपनियों को ट्रेनिंग नहीं चाहिए। कंपनी है ना, भैया तुम आओ, हम तुम्हें सिखाएं। ठीक है, और 3 महीने सीखने के बाद तुम कहीं और चले जाओ। सॉरी, हमें चाहिए ट्रेंड कैंडिडेट्स, Hmm. Yeah. हमें चाहिए स्किल्ड कैंडिडेट्स। ठीक है, Correct. और वही चीज हमने आइडेंटिफाई की विच इज लैगिंग इन टूडेज। अगर मैं टैलेंट, यंग टैलेंट की बात करूं, Mhm. ठीक है, फ्रेशर्स की बात कर लूं, कॉलेज के जो नए फ्रेशर्स होते हैं उनकी बात कर लूं, देयर इज अ गैप। ठीक है, तो गैप क्या है, वो है सप्लाई और डिमांड में। सप्लाई क्या है कि कॉलेज में क्या होता है कि पढ़ा अच्छा रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू गिव देयर नॉलेज। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो चीज नहीं करा पा रहे हैं जो एक्चुअली कॉर्पोरेट को चाहिए। Yeah. कॉर्पोरेट का डिमांड अलग है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी बच्चा होता है वो सीखता कुछ और है। तो वो गैप को हम फुलफिल करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया था, योर फर्स्ट जॉब। Correct. ठीक Right. है, तो इसमें सिंपल योर फर्स्ट जॉब का अगर मैं देखूं, हमारे जो हमने क्रिएट किया था, एक हमारा प्लेटफॉर्म किया था जिसमें हमारा प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस मॉडल वी आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, विच इज स्टिल अंडर गोइंग। टेक्नोलॉजी अभी हमें इंप्लीमेंट करना है, बहुत कुछ करना है, बट हमने एक प्रैक्टिस फेज उसमें डाला था। Correct. तो प्रैक्टिस फेज क्या डाला था कि जब हम कॉलेज में लेके गए इस प्रोडक्ट को, हमने पहले कंपनी से एसोसिएट किया। बहुत सारी कंपनी, आईटी कंपनीज के साथ, नॉर्मल कंपनीज के साथ एसोसिएशन रखा। ठीक है, जैसे एक एचआर कंपनी रखती है तो उनका हम एचआर सर्विसेज और रिक्वायरमेंट हम देख रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आईटी हो गया, किसी को मैनेजमेंट का चाहिए, मार्केटिंग का चाहिए, एचआर का चाहिए, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज का पूल बनाया हमने। फिर हमने उनकी नौकरी दी, उनके रिक्वायरमेंट्स लिए, हमने कहा ठीक है, हम आपके रिक्वायर्स को फुलफिल करेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कॉलेजेस में गए, यूनिवर्सिटीज में गए, Right. उनको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि क्या सप्लाई डिमांड है, एग्रीड। हमने कहा ये कंपनीज है, हमारा प्लेटफॉर्म है, असेसमेंट। बच्चे ने असेसमेंट दिया, असेसमेंट का स्कोर मेरे कंपनी या स्टार्टअप से मेरा शेयर हुआ, उन्होंने उसका शॉर्टलिस्ट किया, इंटरव्यू किया। ठीक है, Mhm. और ये चीज मैंने स्टार्ट किया था ऐसे। ठीक है, एंड बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कोई इसमें डिजिटल मार्केटिंग नहीं करी, कोई हम लोगों ने कोई ऐसा ह्यूज ऑनलाइन नहीं चलाया, सिर्फ ऑर्गेनिक फर्स्ट मंथ में मेरे साथ 3000 बच्चा रजिस्टर्ड हुआ था। Wow. ठीक है, IIIT दिल्ली रजिस्टर्ड, Mhm. DTU रजिस्टर्ड, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रजिस्टर्ड, बिमटेक रजिस्टर्ड, एंड काफी सारे ऐसे कॉलेजेस जिन्होंने रजिस्टर किया, और 3000 बच्चे आए मेरे प्लेटफॉर्म पे, जिन्होंने टेस्ट दिया, और उसका टेस्ट से नौकरी लगी मेरे स्टार्टअप्स पे। ठीक है, तो ये चीज हमने स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद ये जब हुआ, फिर हम आए प्रिपेयर प्रैक्टिस में, जिससे हम ऑफलाइन मोड में अभी हम कैंपस के साथ काम कर रहे हैं। वेयर व्हाट वी हैव मेड इट कि हम एक कैंपस के साथ अपना एक्सीलेंस सेंटर खोल रहे हैं, वहां पे जाके हम स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स को भी हम अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, एंड 3 months वी हैव गॉट अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स, वेरी एक्सीलेंट रिजल्ट। और हमारा जो प्लान है, आने वाले 6-7 महीने में हम इसको और ले जाएंगे, विच हमें नजर भी आ रहा है। Mhm. ठीक है, वी आर गोइंग फॉर इंक्यूबेशन। ओके, काफी यूनिवर्सिटीज हमें इंक्यूबेशन का भी ऑफर दिया है, विच वी आर रेडी टू फाइनलाइज। Wow. ठीक है, इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, सो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर गोइंग गुड। ठीक है,
और ये सिर्फ ऐसा नहीं थी मेरी वजह से हुआ है, आई हैव माय 4 की मेंबर्स, यंग मेंबर्स। अच्छा, सब मेरे कंपनी में एक अच्छी चीज ये है कि मतलब मैं बुढ़ा आदमी हूँ उस कंपनी में, इन शॉर्ट आई एम एजेड गाय। Everyone here is very, very young. Shiv is 28. Our CHRO Soham, she's 25. Okay. Sachin is 28. Rahul is there. He's same. Okay. So I'm the oldest one. I'm 10 years older than them. Right. So everybody's contribution, sheer hard work, commitment have till now made this journey, made this idea a success in the market, which we are getting a good acceptance in education. Right. So in short, यही रहा है मेरा। लेकिन करंट मार्केट ट्रेंड क्या है अभिषेक, लाइक फॉर द जॉब सीकर स्पेशली? अभी मार्केट वाज रियली डाउन, राइट? अभी करंट मार्केट ट्रेंड क्या है? ओके, देखो मार्केट एक्चुअली क्या है, मार्केट डाउन नहीं है प्राची, ठीक है ना। ये जो मैंने ऑब्जर्व किया, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो मैंने कंपनी से इंटरेक्शन किया है, जो मैंने लोगों से इंटरेक्शन किया है, मार्केट गल वो नहीं है। कई लोग कहेंगे अरे एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, खत्म कर दिया। अरे नहीं बाबा, अपने आप को अपग्रेड तो करो। कहां से लेगा कंपनी? अभी कंपनी कैंपस नहीं, ऐसा नहीं कंपनी कैंपस नहीं ले रहे हैं। कंपनी का ये है यार, मेरे को ये स्किल्स चाहिए, आपने वो स्किल्स नहीं आ रहा है। एक आईटी कंपनी को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मशीन लर्निंग का बंदा चाहिए, उसको कुछ पैरामीटर्स हैं, वो प्रोजेक्ट उनको चाहिए कि बच्चा उसमें है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो कंपनी क्यों लेगा? कंपनी अपने एक्सिस्टिंग को ही लेगा या तो एक्सपीरियंस लेगा। ठीक है, सिमिलरली अदर फील्ड्स ऑल्सो। अगर आप लिंक्डइन में भी जाओ, आपको रोज बतेरे जॉब्स पोस्ट आपको देखते हुए कंपनियां दे रही हैं। राइट, बहुत जॉब्स है। अरे मेरी कंपनी में खुद जॉब्स हैं। ठीक है, आई एम ऑफरिंग। यहां लोग करने को नहीं है, ठीक है ना। यहां लोग आते नहीं करने को, सबकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हो गई है, इधर कैंडिडेट्स की एक्सपेक्टेशंस हो गई है। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूं? आपको ऑफिस नहीं जाना है, आधा घंटा दूर है, वो स्ट्रगल नहीं करना है, वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए आपको। ठीक है, आपको पहले में शुरू में काम सीखा नहीं, पता नहीं, आपको सैलरी भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, आजकल मैंने जो देखा है, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट जो एक फ्रेशर्स का माइंडसेट है काम को लेके, एक करियर को लेके, बड़ा मतलब अनोखा हो गया है, विच इज अनथिंकेबल, जो हम लोग सोचते थे। ठीक है, मैं तो यहां से गुड़गांव तक जाता था, दिल्ली टू गुड़गांव। उस टाइम तो इतना मेट्रो भी नहीं बना था, 2010-11 की बात है, इतना मेट्रो भी नहीं था, इतना कनेक्टिविटी था। उस टाइम भी मैंने ये इंटरव्यूज दिए हैं, मैं काम पे भी गया हूं। लेकिन आजकल अगर किसी बच्चे को मैं बोलूं यार यहाँ पे काम है, नोएडा से आपको ईस्ट दिल्ली या साउथ दिल्ली आना है, वो पहले ही उसका शक्ल ऐसा हो जाता है। ठीक है, पता नहीं क्या मैं उससे क्या मांग लिया। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है, एंड इट्स अ रियलिटी, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आई नो, काफी सारे इसमें तर्क देंगे, बट एक तो है स्किल्स नहीं है, दूसरा एक शेयर विलिंगनेस, एक अजीब सा एक विलिंग जो है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैं एक कॉर्पोरेट के साथ मैं एक कैंपस में गया था, एक कैंपस ड्राइव करने। मेरे काफी स्टार्टअप्स हैं जो कहते हैं कैंपस ड्राइव कराइए हमारा, हम ले गए। अच्छा, वहां पे 20 कैंडिडेट ने भरा, 18 ने 15 लोग आए, 5 कैंडिडेट नहीं आए। क्या दिक्कत है? एक को कहीं से घर जाना था, एक को छुट्टी चाहिए, एक का कुछ आ गया। अरे नौकरी है, व्हाट से, मतलब मैं खुद हैरान, मेरा सर घूम जाता है कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। इसी से मुझे एक क्वेश्चन समझ ये आ रहा है कि लाइक कितने ड्रॉप रेट रहते हैं? लाइक ऑब्वियसली यू आर हेल्पिंग फॉर गेटिंग प्लेसमेंट, बट उसमें ड्रॉप रेट कितना रहता है? नहीं, ड्रॉप रेट रहता है, अगर मैं ड्रॉप रेट ऑन एन एवरेज लेके चलूं, 8 से 10% का ड्रॉप रेट रहता है। आफ्टर गेटिंग प्लेस? आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड नहीं, आफ्टर गेटिंग थोड़ा कम रहता है, 5% तो लेके चलता हूं। मतलब अगर 5 बच्चा सिलेक्ट हुआ तो एक तो चला ही जाता है। लेकिन अभी तक टचवुड, जिसने हमारी कंपनी में ज्वाइन किया है, जो हमारे कंपनीज में, तो अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, अभी ड्रॉप नहीं हुआ है। पर हाँ, जो मैंने ड्रॉप रेट्स देखे हैं वो है टाइम ऑफ इंटरव्यूज। किसी का अलाइन कराते हैं, किसी का एक्सपीरियंस के साथ तो चलो होता है, हम एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी है। काफी सारी कंपनीज है हमारे साथ जुड़ी जिनको एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी चाहिए, तो क्योंकि हमें भी अपना रेवेन्यू करना है तो हम उसमें भी काम करते हैं। ठीक है, तो अच्छे सारे मार्जिन में काम करते हैं तो मिल जाता है। लेकिन फ्रेशर्स का ऐसा है, फ्रेशर्स का ड्रॉप रेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बहुत रहता है। ठीक है, विच इज अलार्मिंग, आई एम सॉरी बट दिस इज अलार्मिंग। आई मीन, मैं एक्सपेक्ट ये करता था कि एक्सपीरियंस वाला ही होता है कि ठीक है, चॉइस होता है, कहीं मिल गया कल मिल गया। लेकिन एक फ्रेशर है,
उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर हम दे पा रहे हैं, कॉलेज दे रहा है, कॉलेज बहुत मेहनत करता है। आई हैव नोन फ्यू यूनिवर्सिटीज हु आर वर्किंग डे एंड नाइट to get their children good internship, good placement, they call up the companies. मेरे साथ एसोसिएटेड हैं अभी भी, तो बात करते हैं, बट स्टूडेंट्स दे डोंट टर्न अप, दैट्स द पेन, राइट। राइट? सो अब यही है, तो मैं तो यही समझता हूँ कि मतलब जो मैं गलत हो सकता हूँ, दे आर एक्सपर्ट्स, मैं तो कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं तो एक काम फील्ड में काम करने वाला एक नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है? मुझसे भी इंटेलेक्चुअल्स बहुत हैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में, लेकिन जो मैंने देखा है मैं वही बता रहा हूँ कि जॉब्स हैं, सब है, लेकिन एक स्किल्स, अपना को जो स्किल्स करना, सेकंड द विलिंगनेस, ये दो चीज आजकल के जो अभी जो फ्रेशर्स आने बिल्कुल नहीं है, और ये बात 2-3 साल से नहीं है। राइट। रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था, स्टार्टअप फाउंडर इट वाज, एंड उन्होंने बताया कि आप खुद सोच के देखो कि आज जितना इंडिया में बिजनेसेस आ रहे हैं, और इमेजिन हर एक बिजनेस को 2-3 लोग तो चाहिए ही चाहिए, तो कहाँ से मार्केट नहीं है? मार्केट तो है, इट्स जस्ट दैट एज यू हाईलाइटेड कि स्किल्स नहीं है, लोगों के पास विलिंगनेस नहीं है। और शायद उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई कि शायद लोग ये नहीं समझते कि कोई आपको जॉब देने के लिए बिजनेस नहीं कर रहा है, वो अगर आपके ऊपर 2 रुपए कमाएंगे, अगर 1 रुपए लगा रहे हैं आप पे, तो 2 रुपए डेफिनेटली कमाएंगे। आप खुद को भी एनालाइज करो कि आप 2 रुपए कमा के देने के लायक हो या नहीं हो। अगर आप नहीं हो तो आपको क्यों रखेगा जॉब? सो आई थिंक ये भी शायद थोड़ी मेंटेलिटी है जो आनी चाहिए। बट एनीवे, सो मूविंग अहेड विद दिस पर्टिकुलर थॉट, स्टूडेंट्स को यूजुअली क्या दिक्कत होती है? मतलब some would I think you already address कि शायद skills का gap है, but then have you identified some of the challenges that they face? क्योंकि I think कुछ लोगों के पास शायद resources नहीं हो सकते हैं, वो approach नहीं है, मतलब पता नहीं है, guidance नहीं है, mentorship नहीं है। तो based on your experience helping students so far, what has been the key highlights? हाँ, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है वैभव जो आपने बताया, ठीक है? कि ठीक है, एक तो कैंडिडेट पे स्किल्स नहीं है, ठीक है ना? अब वो कैंडिडेट पे स्किल्स नहीं है, तो अब उसको सिखाने के लिए कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे भी मैं एक चीज पॉइंट हूँ, यहाँ पे भी काफी इंस्टीट्यूशंस की भी गलती मैं मानता हूँ, ठीक है ना? अब प्रॉब्लम क्या है, मैं काफी सारे कॉलेजेस को जानता हूँ, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी को जानता हूँ। आप जाएंगे नॉर्मल, तो वो सारे ब्लेम बच्चों पे डालते हैं कि बच्चा ये नहीं कर रहा है, बच्चा आता नहीं है क्लास में, या अटेंड नहीं कर रहा है, या उसकी ये प्रॉब्लम है। 10 गलतियां बच्चों की गिनाएगा। अच्छा, बच्चों को बोलोगे वो कॉलेज का गिनाएगा। ये चलता है, दोनों तरफ से चलता है, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम क्या है कि ठीक है, आप यूनिवर्सिटी ने कहा कि यार बच्चे में ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप क्या करते हो? आप क्या कर रहे हो? ठीक है, मतलब ठीक है, आपके मन नहीं आ रहा, बच्चा नहीं इंटरेस्ट, लेकिन आपने ऐसा क्या नया चीज कर लो कि बच्चा ले। आजकल का जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, खासकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, वो अपने आप को इतना इन्वेस्ट नहीं करते, बहुत ही कम। मैंने बहुत ही अच्छे कॉलेजेस से मैंने बात किया है, ठीक है? मैं कुछ कॉलेजेस को मैं जानता भी हूँ, जिनके मैनेजमेंट को जानता हूँ, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली हार्ड वर्क, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन कुछ कॉलेजेस अभी भी ऐसे हैं जो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है? अपने मतलब वो चल रहा है राइट। और काफी प्राची शुड बी नोइंग, तो वो तो हायर एजुकेशन से है। काफी कॉलेज है प्राची, यू मस्ट बी नोइंग, वो बंद होने के कगार पे, ठीक है? यू नो दैट, ठीक है ना? ठीक है, वो फिर रोते हैं कि एडमिशन नहीं हो रहा, व्हाटएवर नहीं हो रहा, बिकॉज क्योंकि उन्होंने अपने में चेंज नहीं करा, ठीक है? कुछ नई चीज लाना, कुछ इनोवेशन, कुछ अपना शुरू करना, कुछ एक सेल बनाना। कई यूनिक कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप सेल ही नहीं है, ठीक है? कई लोग उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं करते हैं। एक ई सेल होता है, अच्छी यूनिवर्सिटीज में है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज में स्ट्रांग है, कई कॉलेजेस में तो है नहीं, इनको पता ही नहीं है, ठीक है? कई जगह इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं है, कई जगह टेक के नाम पे कुछ बना रखा है, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रखा है, ठीक है? अगर आपको भी अगर बच्चों को अगर करना है, काफी जो कॉलेज स्ट्रगल करता है, मेरे पास आते हैं कि यार हमारे बच्चों को प्लेस कर दो, हमारे बच्चों को प्लेस कर दो। रोज फोन आते हैं, मेरे पास आते हैं, शिव के पास आते हैं, मेरी टीम के पास, सचिन के पास आते हैं, सोम के पास आते हैं, प्लेस कर दो। लेकिन क्या से प्लेस करें कि बच्चे में स्किल तो हो, स्किल के लिए आपने तो कुछ कराया नहीं। अब मेरा भी ट्रेनिंग है, लेकिन मेरा ट्रेनिंग का एक टाइम पीरियड है, ठीक है? आप उसे एक्सेप्ट करो, मैं कराता हूं, या तो कॉलेज मुझे बोले कि मैं जाके वहां पे कुछ खोलता हूं, ठीक है? वी आर रेडी, और लोग हैं करने के लिए, लेकिन आप उस चीज को एक्सेप्ट करके उसे इंप्लीमेंट तो करो। खर्चा लगेगा, उस माइंडसेट में तो आओ। लेकिन अगर आपको चाहिए बैठे बैठे सब फ्री में, प्राची शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दिस,
ठीक है, बैठ के फ्री में सब मिल जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं कर सकता कोई, कौन करेगा? ठीक है ना, मैं ओपन माइंडेड कह रहा हूँ, हो सकता है मेरे पॉडकास्ट के बाद कई कॉलेज मुझे मारने को आएंगे, ठीक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो बात फैक्ट है, मैं एक दिल की बात बता रहा हूँ और वो पहुंचे लोगों में कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है कॉलेज के लिए भी, अपने लिए भी, बच्चे भी हों, तो आपको चेंज तो लाना पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूशन में, लोगों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इनोवेशंस पे। नहीं करोगे तो वही चलता रहेगा, कोई बात नहीं, वही कंपनी आएंगी, वो जाएंगे डीटीओ हायर करने, आईआईटी हायर करने, पहला उनका प्रायोरिटी यही होता है। कई कॉर्पोरेट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं यार हमें ये प्रेफर्ड कैंपसेस हैं, इनमें ही हम जाएंगे। ठीक है, बाकी जब मैं नाम लेता हूं वो कहते हैं अच्छा ठीक है बाद में देख, ठीक है ना। तो यही ट्रेंड चलता रहेगा और कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो यही चीज है एंड यही चीज को हम एज ए कंपनी, एज YFJ टीम, हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम सक्सेस मिल रहा है, होपफुली आगे हमें और मिलेगा और हम इसको एक अच्छा लेवल पे करेंगे। ठीक है, तो यही है। और सर लाइक आई थिंक डू यू आल्सो सी कि शायद आजकल जो लोगों का मतलब टीचिंग जॉब जो है आई थिंक लोगों के लिए थोड़ा सा कंफर्ट हो गया रादर देन देयर विलिंगनेस टू टीच। आई डोंट नो, लाइक मे बी मैं गलत हो सकता हूँ बट टीचिंग, हाँ, मतलब जैसे कि कॉलेज में अगर कोई लेक्चरर है, आई थिंक पीपल आर चूजिंग दिस जॉब बिकॉज इट इज इजी टू गेट अ जॉब। पहले तो अगर आपके पास मास्टर्स है, अच्छी डिग्री है, एंड देन उनके पास में विलिंग नहीं है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, रीजन बीइंग कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, आपने भी सुना होगा रॉयल टैक नाम का, हमारे हिस्ट्री में हमको कुछ था, राइट? देयर वाज अ टीचर जिन्होंने हमको पूरा इस पर ड्रामा करा के पूरा मतलब हमको मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स बनाया, एंड देन अब वो मुझे आज भी याद है। आई थिंक ऐसे जो विलिंगनेस वाले टीचर होते हैं ना, जो कुछ अलग से पढ़ाते हैं करते हैं, वो आई थिंक दे आर, इट इज नॉट आई एम सीइंग राइट नाउ। अभी वो कह रहा है कि दे आर मोस्टली दे आर सिटिंग, दे आर टीचिंग, दे आर ट्राइंग टू कवर अप द सिलेबस, और शायद वो स्टूडेंट्स को भी मजा नहीं आ रहा है उस चीज में, इसलिए वो शायद बैक ऑफ कर रहे हैं, लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो, लाइक आई एम नॉट ब्लेमिंग जस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेज, बट आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव सीन एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट सो फार। अगर मैं टीचर्स का बात करूं, ठीक है, हाँ वैभव ने अपना एड्रेस किया, लेकिन ये पहले था, थोड़ा 2-3-4 साल पहले की बात करूं तो तब था, एक ट्रेंड पे आया था कि कॉलेज लेक्चरर्स में ना काफी, इनफैक्ट जहां से मैंने MBA किया है वहां पे मेरे काफी कलीग्स मेरे साथ MBA किया है, वो कॉलेज निकलने के बाद लेक्चरर लग गए कैंपसेस में आसपास में। ठीक है, कोई मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एंड अभी भी हैं काफी लोग, ठीक है, एंड अच्छे यूनिवर्सिटीज में भी करा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम एक फैशन आ गया था, इवन फैक्ट मैंने जानता था कि ये टीचिंग का भी कॉलेज में पढ़ाना है, एक बड़ा अच्छा है कि आप पढ़ाएंगे, कोई कॉर्पोरेट प्रेशर नहीं है, लेकिन एक्चुअली प्रेशर है। और मुझे भी लगता था कि यार पता, मुझे भी ऑफर आया था इनफैक्ट एक कॉलेज से कि अभिषेक तू भी आजा, मेरे प्रोफेसर थे, कहा तू पढ़ा ले यहाँ पे, ऐसा ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, यू आर गुड, मार्केटिंग पढ़ा सकता है बच्चों को, क्या दिक्कत है। मैंने सोचा भी था यार अच्छा है, मतलब सुबह जाऊंगा 5 बजे घर आ जाऊंगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जब मैंने रियलाइज किया कि प्रेशर उसमें भी है, बहुत प्रेशर है, एक प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन, आपको अपना, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं आपको, ऑफ कोर्स हर एक बच्चे का ट्रैक, आपको पढ़ा क्या रहे हो, करिकुलम सेट करना, लेसन प्लान, असेसमेंट प्लान, हर एक बच्चे का देखना एंड मेक श्योर द रिजल्ट्स कम्स ऑफ। बच्चे का रिजल्ट भी तो अच्छा होना चाहिए ना, कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चा बाद में आ रहा है, टेस्ट दे रहा है अपना या असेसमेंट दे रहा है, फेल हो रहा है, तो वो भी नेगेटिव है, ठीक है, छुट्टी सुना देते हैं। मेनी प्रोफेसर बात करोगे, बहुत प्रेशर है, ठीक है, बहुत। उसके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स के एक्टिविटी होता है, किसी को एग्जाम सेल का कोऑर्डिनेटर बना देते हैं। ऐसे मेरा एक प्रोफेसर दोस्त है, ठीक है, ही इज माय क्लासमेट आल्सो, ही इज वन ऑफ प्रोफेसर इन वन ऑफ द प्रीमियम यूनिवर्सिटीज इन नोएडा। तो ही इज एन एग्जाम, ही हैज गॉट अ स्मॉल एग्जाम कोऑर्डिनेटर, उसको सांस लेने का फुर्सत नहीं है, ये सुबह से लेकर 8 बजे तक लगा रहता है। व्हेन आई स्पीक टू हिम कि अभिषेक बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है, ठीक है। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर खुद को भी अपग्रेड करना पड़ता है टीचर को, रिसर्च पेपर बनाता है या कुछ पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस टीचर फेस, ओके। लेकिन अब क्या होता है कि जो आजकल का जो ट्रेंड आ गया है टीचिंग का, तो मुझे लगता है एक टीचर को अपने करना चाहिए। प्रॉब्लम टीचर की भी नहीं है एक्चुअली, हमारा एक सेट पैटर्न बना हुआ है काफी यूनिवर्सिटीज का, वो एक सेट थ्योरी पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा फर्स्ट ईयर में आया, उसने पढ़ा मार्केटिंग मैनेजमेंट, व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज ब्रांडिंग, फिलिप कॉटलर की किताब उठा ली तो उसमें सारे केस स्टडी दिए होते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें हैं। लेकिन बच्चे को वो नहीं चाहिए,
उससे बच्चा अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब तो ऑनलाइन भी कर लेगा बच्चा, कोर्सेरा चला जाए, उडेमी चला जाए, ठीक है, निकल के आ जाएगा सामने। अब बच्चे को चाहिए एक्टिविटीज, Yeah, exactly. प्रैक्टिकल नॉलेज। एक टीचर तभी सक्सेस होगा बच्चों के साथ जब से एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम कराए, ठीक है। अगर मार्केटिंग दे रहा है उसको, तो मार्केटिंग में एक्टिविटीज कराए, एक केस स्टडी दे या एक्टिविटी कराए। वो इनोवेशन हर एक टीचर में आना जरूरी है। हाँ, एक टीचर फंस जाता है क्योंकि ऑफकोर्स एक यूनिवर्सिटी में गया, फॉर एग्जाम्पल किसी यूपीटीयू की यूनिवर्सिटी में गया, कॉलेज में गया, तो ऑफकोर्स एक सेट पैटर्न से पढ़ाना है, लेकिन अब उसी पढ़ाने के तरीके को उसको मोल्ड करना होगा कि कैसे मैं उसको भी केटर कर लूं और बच्चे को भी इंटरेस्ट आ जाए और बच्चा भी मेरा अपग्रेड हो, ठीक है ना। तो ये एक चैलेंज है, ठीक है, बट आई एम श्योर कि आने वाले टाइम्स में थोड़ा सा ये चेंज होगा, ये पैटर्न आएगा। टीचर्स ट्राई भी कर रहे हैं, मैंने बहुत टीचर्स को देखा है ट्राई कर रहे हैं। एक जो मैं देखा है कि जो मैं चाहता हूं पर्सनली, जो शायद अभी लैक कर रहा है काफी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, वो ये है कि वो लोग अपना एकेडमिक्स में ध्यान देते हैं, बहुत देते हैं, लेकिन एकेडमिक के साथ साथ उनको थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा आउटसाइड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी। उसको थोड़ा वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। उनका फोकस एकेडमिक पूरा रहता है कि हम ठीक है एकेडमिक्स पूरा देखेंगे, लेकिन उसको, जैसे मैंने पहले बात की, उसको अलाइन करना, जब मेरा बच्चा बाहर निकले वहां जाए, वो अलाइनमेंट का भी उन्हें धीरे धीरे सोचना होगा। जब वो उस चीज को अलाइन करके सोचना स्टार्ट कर देंगे ना, तो वो चीजें अपने आप इंप्लीमेंट कर लेंगे कैसे हमें कराना है। अभी काफी जगह वो अलाइनमेंट नहीं है। मैंने पढ़ा दिया, हाँ मैंने पढ़ा दिया, दैट्स इट, अच्छा पढ़ा दिया, दैट्स इट, मैंने सब दे दिया, उसके बाद बच्चे का क्या नहीं पता। बट अभिषेक, ये चीज मैं पहले कोविड के समझ सकती हूँ, कोविड के पहले ये प्रॉब्लम थी, लाइक हाँ। तब तक अपस्किलिंग के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं दिया जाता था बच्चों को कि अपस्किलिंग करने की जरूरत है आपको। हाँ। लेकिन डोंट यू थिंक कि कोविड के बाद सिनेरियो काफी चेंज हुआ है, जहाँ पे कि दोनों चीज में इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं दिखा है, जहाँ पे कि बच्चे भी अपस्किलिंग का वैल्यू समझ पा रहे हैं, एंड वो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे ही हैं, या इसके साथ साथ टीचर्स एंड पेरेंट में भी थोड़ी सी जागरूकता बढ़ गई है कि दे नो अबाउट इट कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में कोई भी, अगर मैं मतलब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को ले लूं, तो दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट सर्टेन एक्टिविटी बेस्ड थिंग्स फॉर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली उसको टाइम लगता है लगाने में, लेकिन कोविड के पहले मतलब इट वॉज अ सिस्टम जो कि हमारा 20 साल से चल रहा था, राइट, कि उसमें कोई चेंज ही नहीं आया था। लेकिन कोविड के बाद डोंट यू थिंक कि मतलब ये चेंज आया है? अभी भी आपको ये प्रॉब्लम फेस, लाइक आपको अभी भी ये प्रॉब्लम दिख रहा है व्हेन यू आर like tying up with any of the institution for your first job? Are you still seeing this kind of challenges? ओके, हाँ, ये प्राची आपने बात सही कही कि कोविड के बाद थोड़ा चेंज आया है, अपस्किलिंग से पहले नहीं था। लेकिन वो चेंज क्यों आया है? वो चेंज इसलिए आया है क्योंकि रियलाइज हुआ जब कोविड के टाइम में जॉब्स जाना शुरू हो गई लोगों को, देन लोगों को वैल्यू पता लगी यार कि अगर हमें टिके रहना है जॉब में या लॉन्ग टर्म, तो हमें अपने आप को करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बच्चों को भी रियलाइज हुआ, प्रोफेशनल्स को भी रियलाइज हुआ, मैंने भी फेस किया है, शायद आप लोगों ने भी फेस किया होगा कि कुछ ना कुछ करना, मैंने भी किया था। जैसे आप बता रहे थे गूगल में करा कुछ, मैंने IIM बैंगलोर का एक ऑनलाइन में CRM सीखा। व्हाई आई डिड दैट? बिकॉज आई ऑल्सो रियलाइज कुछ तो अपने आप को अलग अलग भी करना, दिखाना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज जरूरी है अगर सस्टेन करना है, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं एक लाइन में अच्छा रहता, बट मुझे ही रियलाइज हुआ, मुझे लगा कि शायद अब मुझे थोड़ा सा अपने आप को भी दिखाना पड़ेगा कि यार मैं ये भी किया है मैंने, मैं अच्छा हूँ, ठीक है ना। तो वो एक आया है अपस्किलिंग का। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चे कोशिश नहीं कर रहे हैं, काफी सारे बच्चे जो हैं वो करते हैं, ठीक है, अपस्किलिंग कई जगह एनरोल करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। कोई बच्चा अगर मार्केटिंग में, वो कहता है यार मैं ब्रांड मैनेजमेंट में कुछ सीखूंगा, फॉर एग्जाम्पल। कोई बच्चा अगर IT में आया है, वो कह रहा है कि आई वांट टू स्पेशलाइज इन AI, आई वांट टू स्पेशलाइज माई सेल्फ इन रोबोटिक्स एक फील्ड है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल के बच्चे अब जाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। काफी सारे कोडिंग पे फुल स्टैक आ गया है आपका, फ्रंट एंड बैक एंड, और बहुत सारे चीजें, नई नई चीजें आ गई हैं, तो वो चीजें आ रही हैं, ठीक है। पर अभी भी मुझे लगता है कि अगर मैं एकेडमिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं, काफी सारे हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब नहीं कर रहे हैं, काफी सारे ऐसे हैं अभी भी उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं,
ड्यू टू मेनी रीजन, शायद हो सकता है कोई इंटरनल रीजन हो, फाइनेंशियल रीजन हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन अभी भी वो चीज है। ठीक है, मतलब आप प्रैक्टिकली देखना, आप किसी भी, अगर आप 10 कॉलेज जाओगे आपको 7 ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अभी भी वर्क नहीं करा है, 3 ऐसे हैं दे हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग समथिंग, कुछ तो कुछ नया कर रहे हैं। किसी ने कह दिया कि हम अपना एक रोबोटिक्स लैब खोल देंगे, ठीक है, वो किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है कैंपसेस में, ठीक है ना। कुछ एक इंडस्ट्री है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप कल्चर अब मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ये चीज भी बड़ा गलत हो रहा है, उस चीज पे भी हम वर्क कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था प्राची, जो मैंने पहला ब्रांड था वाईएफएस में, कई स्टार्टअप्स का होता था, बच्चे सोचते हैं स्टार्टअप बड़ा एक फैंसी सा चीज है, पता नहीं क्या है, बड़ा मजा आता है, लेकिन एक्चुअली है नहीं। हाँ, आपने बताया नहीं योर फर्स्ट स्टार्टअप में एक्चुअली आपने किया क्या था, जिसके Okay. कारण आपने फिर योर फर्स्ट जॉब में आपने स्विच किया? नहीं, वो फर्स्ट स्टार्टअप जो मैंने स्टार्ट किया था, वो हमने स्टार्ट किया था कि हमने सोचा था कि एक आइडिया आया था दिमाग में। एक्चुअली वो आइडिया कैसे आया था कि मैं शिव के साथ यूनिवर्सिटी वेयर ही स्टार्टेड जीएलए, सो वी वेंट देयर एंड वहां पे वो, क्योंकि बिकॉज ही स्टार्टेड द इंक्यूबेशन सेल देयर स्टार्टअप, ही वाज द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, सो ही, तो उसको इनवाइट मिलता रहता है, तो मेरे को साथ ले गया कि चलो, सैटरडे का टाइम था, वहां पे कुछ एक पिच हो रहा है वहां के स्टार्टअप जो इंक्यूबेटेड हैं बच्चों का, तो वहां गया, बच्चों ने अपना पिच दिया, उनको अवार्ड्स मिल रहे थे, कुछ उनको वो मिल रहा था, ग्रांट मिल रहा था, ऑल दोस थिंग्स, इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो जब हम बाहर आए, हम चाय और पराठे खा रहे थे, तो जस्ट एक आइडिया आया, शिव ने बोला, अभिषेक यार, देख रहा है, मतलब ये बच्चे हैं 3rd ईयर के, ठीक है, आज एक स्टार्टअप बना के बैठे हैं, 5 साल बाद ग्रो कर जाएंगे, तू क्या कर रहा है, तेरे को 10 साल हो गए, मैं चल ठीक है कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को भी एज हो रहा है, क्या कर। तो मैंने कहा हाँ ये तो है, अगर हमने पहले शुरू किया था, हो सकता है हम शायद उस टाइम में अगर नॉलेज होता या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आता, शायद हम कुछ डिफरेंट लेवल पे होते हैं, ठीक है। आज नौकरी कर रहा हूँ, किसी को नौकरी दे रहा होता, ठीक है ना। तो फिर एक अचानक से दिमाग में आया शिव के कि यार अभिषेक, क्यों ना हम यार यही चीज ना स्टार्ट कर दें, एक करिकुलम बनाते हैं, हम स्कूल में भी लगाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम बनाते हैं और स्कूल में सिखाएंगे इसको, एक नई चीज भी है, स्कूल्स में देखा नहीं है, स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने कहा अच्छा करते हैं, वेरी गुड। तो शिव ने पहला क्वेश्चन मुझसे ही पूछा, अच्छा शिव ठीक है अभिषेक, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग बताइए, ठीक है। अच्छा, ये होता था, ये मैं अभी भी जब भी मैं किसी टॉक में जाता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के, स्कूल के, कॉलेज में, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग बताना, ठीक है। तो आप 90% बच्चे वही हो जाते हैं, ठीक है ना, ERRE में गए, ठीक है ना, वो मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। So anyways, so that's how we started. So we created this entire curriculum ourselves. एक एक्टिविटी बेस्ड हमने करिकुलम बनाया कि आप आइडिया जनरेट कैसे करते हो, आप आइडिया वैलिडेट कैसे करते हो, टीम कैसे बनाते हो, प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करते हो, क्या क्या टेक्निक्स है, वो सारी चीज से लेकर आप इन्वेस्टर को पिच कैसे करोगे, वो सारी चीज हमने एक बुक लिख ली। ये किस एज ग्रुप के लिए? हमने ये स्टार्ट किया था फ्रॉम क्लास 7th ऑनवर्ड्स, 12th ऑनवर्ड्स हमने स्टार्ट किया था। तो हमने उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने एक्टिविटीज बनाई, एक्टिविटीज के साथ केस स्टडीज बनाए, उसके साथ साथ हमने पूरा एक बुकलेट बना लिया, ठीक है, वाई फॉर स्टार्टअप के नाम से बुकलेट बनाया, एंड वी स्टार्टेड लॉन्चिंग इन द स्कूल्स। ओके, स्कूल्स बड़े फैसिनेट हुए थे, ठीक है, एंड उसके साथ साथ हमने कहा कि टू गेट एंट्री इन द स्कूल्स वी आल्सो स्टार्टेड अलाइड प्रोग्राम्स एज वेल, जिसमें हमने कोडिंग भी स्टार्ट किया, रोबोटिक्स भी कहा, ठीक है। हमने तीनों को ही मर्ज किया, तीनों को मर्ज ऐसे किया कि हमने ये, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर कोई बच्चा स्टार्टअप में काम कर रहा है, इंटरेस्टेड है, उसको टेक का ज्ञान तो होना ही चाहिए, तो उसको कोडिंग का भी आना चाहिए, उसको रोबोटिक्स फील्ड का भी अगर इंटरेस्टेड है तो आना चाहिए। तो हमने तीनों को क्लब करके हमने स्कूल में प्रेजेंट किया, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस हुआ, ठीक है, एक्सेप्टेंस होने के बाद अभी भी चल रहा है, काफी स्कूल्स में हमारा वो प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, ठीक है, एंड गोइंग क्वाइट वेल। बट वही था कि हमने जब इस चीज को लॉन्ग टर्म में देखा, लॉन्ग टर्म पे एज एन कंपनी, एज अ इंडिविजुअल, एज अ स्केलेबल थिंग वी डिडंट फाउंड, ठीक है, क्योंकि देयर वर चैलेंज था, एक तो कि एक तो इंस्टीट्यूशन की तरफ से चैलेंज था, ठीक है, इवन स्कूल्स भी थोड़ा सा था कि एक बैकफुट में जाते थे कि देयर इज अ फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट, ओके, they were not that ready. I think Prachi will be able to relate. Okay, they were not that ready. Although they liked it, करना चाह रहे हैं, पर इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे,
ठीक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है क्योंकि मेरा एक मैन पावर रहेगा, मेरा एक ट्रेंड ट्रेनर है, उसका एक कॉस्ट है, ठीक है, एक मैं आपके यहाँ सेटअप कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका भी एक कॉस्ट है, ठीक है। तो वो एक मैं जब देख रहा था लॉन्ग टर्म थोड़ा सा हैवी पड़ रहा था एंड वी वर नॉट डूइंग इट, तो हमने वाईएफएस को वैसे ही रखा, थोड़े बहुत उसको और चेंज कर दिया। चेंज क्या किया, अब वाईएफएस मेरा ना केवल सिर्फ स्कूल्स के लिए है, पर उसको हमने एक अपडेटेड न्यूज फीड बना दिया है। इसमें अगर आप जाओगे आपको दिखेगा उसमें अब जितने भी नए नए स्टार्टअप्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, आ रहे हैं, या एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं, उनके उसमें लाइव न्यूज हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, उसको कितनी फंडिंग मिली, उसने क्या प्रोडक्ट लॉन्च किया, क्या मार्केटिंग कर रहा है, क्या अपडेटेड न्यूज है। तो एज अ लाइव फीड हमने लॉन्च किया है। प्लस किसी भी इंस्टीट्यूशन को, कॉलेज को अगर अपना एक इंक्यूबेशन सेल चलाना है, बिकॉज वी आर नाउ एक्सपर्टाइज इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंक्यूबेशन, टीम है, चलाना है, हम उस चीज को हम वहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं इंक्यूबेशन वाईएफएस के नाम से, ठीक है। अभिषेक टू एक फाउंडर बन गए, व्हाट आई अंडरस्टैंड कि एक आप बता रहे हो योर फर्स्ट स्टार्टअप एंड देन यू आर आल्सो रनिंग साइमल्टेनियसली योर फर्स्ट जॉब, राइट? हाँ, लेकिन योर फर्स्ट स्टार्टअप हम उसको मेन फोकस नहीं है हमारा, हम उसको एक दे रहे हैं, एक ऐसा दे रहे हैं कि आप कॉलेज में गए, उसने हमारा प्रोडक्ट वाईएफजे का पसंद आया, हमारा प्लेटफॉर्म लिया उन्होंने, ठीक है, कॉलेज ने कहा कि ठीक है यार कुछ और भी एडिशन, तो यार ये भी मैं कर दूंगा, अगर आपको चाहिए कि इंक्यूबेशन नहीं है, आप आउट ऑफ द सेल है, तो मैं ये ओपन कर दूंगा, ये मेरा वाईएफएस ब्रांड है, सब यूज करो, इंक्यूबेट करो बच्चों को, हम गाइड करेंगे बच्चों को कैसे स्टार्टअप कर चलाना है, आइडिया कैसे लाना है, इंक्यूबेशन करना है, हमारे पास नेटवर्क अच्छा है, हम उसे पिच के लिए भी ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हमने वो एंटायर एक सोल्यूशन रखा है उसको, ठीक है। लेकिन अभी जो मेन हमारा फोकस है ऑफकोर्स एक वाईएफजे को बिल्ड करना, उसको स्केलेबल करना, और जितनी ज्यादा बच्चे, जितने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बेनिफिट देना, ठीक है। वी वांट बेनिफिट, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने जो गलतियां की या हमने जो फेस किया वो अब बच्चे जो है ना फेस करें, ठीक है। जो एक होता है कि स्किल्स का दिक्कत है या कुछ भी, एक होता है, एक और होता है आजकल के बच्चों में, हमने जो फेस किया, जैसे मैंने आप प्राची बताया चैलेंजेस, ठीक है, एक चैलेंज रहता है हम सब में, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, घर वाले प्रेशर डालते हैं, नौकरी करो नौकरी करो, शादी नहीं होगी, ठीक है, शुरू में तो पहले ये आता है, शादी के बाद फिर बीवी का होता है, बच्चे का होता है, तो लॉट ऑफ थिंग्स, एक प्रेशर रहता है। तो वो प्रेशर में से कैसे, मतलब वो चीज, इसमें काफी सारे बच्चे मैं जानता हूँ जिनके बहुत ब्रिलियंट आइडियाज थे, वो नहीं कर पाए, कॉलेज में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। कई लोग मुझे फोन करते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर मेरा ये आइडिया था, ना ब्रिलियंट आइडिया, क्यों नहीं किया तूने? कहता सर क्या करता सर, घर वाले सुना रहे हैं, पढ़ाई करो, कॉलेज का है, नहीं कर पाया, कोई बात नहीं मैं हेल्प करूंगा, यू डू इट, ठीक है। तो ऐसे बहुत देखे हैं, तो वो चीज को हमें हटाना है और उसी चीज में मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे वाइफ जैसे जितने बच्चों को बेनिफिट हो, जितने बच्चे कल एम्प्लॉयबल तो एक चीज है, मैं ये भी चाहूंगा कोई भी कुछ भी करे, एम्प्लॉयबल जाए, चाहे वो सरकारी करे, चाहे वो स्टार्टअप चलाए, ठीक है। जितना मैं कर सकता हूं बच्चों के लिए, फ्रेशर्स के लिए, मैं बस वो करना चाहता हूं, और इसी साल से मैं करना चाहता हूं, और कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं इस साल में हम उसे करें, एटलीस्ट हम 1-2 लाख बच्चों पे पहुंचे है। I was just saying कि I think this is a good time to have podcast with him because I think as he mentioned they are going into some new phase of their startup journey. So I believe हम लोग फिर से एक बार साथ में बैठ पाए when they are well grown and like थोड़ा सा और bigger हो, I think there will be he will be able to share a lot of, because I think वो journey भी काफी interesting रहेगी सुनने में कि कैसे यहाँ से वहाँ गए, and then so definitely it will be amazing. So sir, this is our one of the last segment that we are about to jump in, and it's called rapid fire. So we have few words for you based on so far what we heard from you. आपके मतलब जो हमको लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं आपका पर्सपेक्टिव समझने के लिए. So yeah, Prachi, I will let you start about it. Okay, perfect. Let's start with education as we are from that industry. So let's first take education. What? Education. Knowledge. Okay. Your first startup? Your first startup. Entrepreneurship. Entrepreneurship. Okay. How about profit? Okay. The profit, okay, I'll tell you profit. The profit is aim.
right? Hmm. Profit aim. Okay. Um, your first job? Dream. Okay. So this is the Another word is success. Absolutely. How do you like? What is your one word answer to success? Success. Yeah, what does Okay. it look like? Yeah. Success, one word answers. What can I say about success? Success is achievement, success for me, if I talk in elaborative way, is something which I don't see after 3 4 months. Success is what I'm doing today, achieve today, right? So if today I am, for example, if today I am gaining one corporate with me, that is my success. Okay, tomorrow if any child enrolls in my platform, that is a success, right? So I measure the success the everyday process, It's a journey. Yeah. right? I focus on the process every day. The process should be that we have decided, that should be implemented. If Yeah. every day we are doing that process, irrespective of results comes or not, it's okay. But if we can implement that process every day that we had planned, then I think that is a success. Result will come whenever it comes, I don't care. Great. very true. So, sir, that's it for this podcast. I think we have a lot to discuss because I think I was just hearing your answers, and I think maybe we might need another episode of this because I think you have a lot to share. But for this episode, I think we are good to move ahead and conclude this today. Thank you so much for taking this time out today and talking to us. Thank you. Thank you, Thank you. guys. So, if you like this podcast, do hit that like button, subscribe to our channel, and see you bye bye next podcast. Thanks. Thank you. Thank Bye. you. Bye.